رہے تھے اور ذہن پر یہ شعر آ رہا تھا کہ لکھی نبیوں کی یوں میں نے ثنا اول سے آخر تک، لکھی نبیوں کی یوں میں نے ثنا اول سے آخر تک، محمد لکھ دیا بس ہو گیا اول سے آخر تک۔ حاضرین محفل، نبی کی سیرت کے لیے جلسہ ہے اور نبی کی تعریف بیان کرنے والے، ثنا کہنے والے آخر میں اس جملے کو کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ شاعر کہتا ہے کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی میں آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت تو آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ تو اس نبی کی ہم تعریف کیا کر سکتے ہیں؟ الحمد للہ کا قرآن کی تعریف ہے، نبی کے چہرے کا ذکر آتا ہے، قرآن کہتا ہے والضحیٰ، نبی کی زلفوں کا ذکر آتا ہے، قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا، نبی کے زمانے کا ذکر آتا ہے، قرآن کہتا ہے والعصر، نبی کے شہر کا ذکر آتا ہے، قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، نبی کی زبان کا ذکر آتا ہے، قرآن کہتا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به، اور مستقل ایک سلسلہ ہے جو مستقل چلا جا رہا ہے۔ قرآن پڑھیں، قرآن کھولیں تو صحیح، اسی لیے تو شاعر کہتا ہے صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار گر چکے ہوں تو میدان میں پڑھو، اور یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو۔ مدرسہ اسلامی آزادیہ گلزار مظفر کا سالانہ اجلاس و دستار فضیلت، جس میں اور آپ بیٹھے ہیں اور پروگرام کو سن رہے ہیں، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں آپ کے اسی مدرسے کے ایک متعلم جنہوں نے مشکات شریف عربی ہفتوں یعنی دیہاتی زبان میں کہہ لیجیے مولویت کا 7واں سال اسی مدرسے میں رہ کر کے پڑھا ہے، اور 1 سال کے بعد وہ مکمل عالم دین ہوں گے۔ الحمدللہ یہ ایک بڑی کامیابی کی بات ہے، میرے اور آپ کے لیے فخر کی بات ہے اور خوشی کی بات ہے کہ ہمارے اس ادارے میں الحمدللہ حدیث کی بڑی کتاب مشکات شریف کی تعلیم چل رہی ہے، اور انہوں نے وہ یہاں رہ کر کے پڑھی ہے اور پورے سال انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ مولانا محمد مستقیم صاحب ان کے استاد، انہوں نے ان کو پڑھایا ہے۔ اب میں درخواست کروں گا اسی کی ایک کڑی مولانا محمد ندیم جو آپ ہی کے اس مدرسے کے متعلم ہیں تشریف لائیں اور وہ بھی اپنی معروضات پیش فرمائیں۔ مولانا محمد ندیم۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم۔ اگر فرعون اٹھتا ہے تو موسیٰ کی عصا بن جا، اگر فرعون اٹھتا ہے تو موسیٰ کی عصا بن جا، زمانے کے لیے کچھ کر کے اندازے وفا بن جا، کبھی خالد کبھی درار سی جرأت بھی پیدا کر، کبھی صدیق سا عاشق کسی کا آسرا بن جا، نبی کے عشق میں حسان سا ماحول پیدا کر، کبھی ایمان کی آتش میں عمر کا دبدبا بن جا، کیا کہنے بہت عمدہ، تیری ہر ایک صدا میں بلالی لحن پیدا کر، تیری ہر ایک صدا میں بلالی لحن پیدا کر، علی کا جوش بن جا، عثمان کی حیا بن جا۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ یہ دنیا انقلابی زندگی چاہتی ہے اے ندیم، یہ دنیا انقلابی زندگی چاہتی ہے اے ندیم، کچھ ایسا کام کر کہ زمانے سے جدا بن جا۔ واجب الاحترام حضرات علماء کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک وہ آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، اور آپ حضرات کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ سیرت النبی کا جلسہ ہے،
آپ अलैहिस्सलाम की सीरत एक अथाह समंदर है जिसमें इतनी गहराई है कि कोई आदमी उसमें शनावरी नहीं कर सकता है। एक अरबी के शायर ने 40,000 अशआर हुजूर की शान में लिखे हैं। 40,000 अशआर के बाद जो उसने आखिरी शायर लिखा उसका तर्जमा एक उर्दू के शायर ने किया है। 40,000 अशआर के बाद उसने कहा है कि थकी है फिक्रे रसा मदा बाकी है, कलम है आबला पा मदा बाकी है, वरक तमाम हुआ मदा बाकी है और उमर तमाम लिखा मदा बाकी है। तो नौजवानों, मैंने आप हजरात के सामने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी थी जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया कि मोहम्मद हमने आपको रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा। तो आप हजरात ये समझिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से रहमत है। देखो आसमान ठहरा हुआ है, ये भी मेरे नबी की बरकत है। जमीन कायम है, ये भी मेरे नबी की रहमत की बरकत है। दरियाओं को वसाअत मिली, ये भी मेरे नबी की रहमत है। तो दोस्तों, मैं आप हजरात को ये मिसालों के जरिए से समझाता चलूं। देखो, एक आदमी मजदूर है। जब हुजूर दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो वो सारा का सारा दिन मजदूरी किया करता था। 10-10 दिन मजदूरी करता था। वो दुखों में मुब्तला रहता था। वो इंसान बनकर हैवान की जिंदगी गुजारता था। उसको कोई आदमी मजदूरी नहीं देता था। उसके लिए कोई कायदा कानून नहीं था, कोई ज़ाब्ता नहीं था, कोई अखलाक का कुल्लिया नहीं था, कोई कायदा कानून नहीं था। उसके लिए कोई ज़ाब्ता नहीं था उसको कि ज़ाब्ते से मजदूरी दी जाए। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े सरदार ने फरमाया आतुल अजीर अजरहु क़ब्ल अन यजुफ़्फ़ अरक़हु, कि मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी अदा कर दी जाए। क्यों? इसलिए कि मजदूर जब बद्दुआ करता है तो अल्लाह के दरबार में डायरेक्ट कबूल होती है और अर्श को हिला करके रख देती है। तो मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी थी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि मेरा पैगंबर इस मजदूर के लिए भी रहमत बनकर के आया है। बेशक बेशक बेशक। नौजवानों, इस मजदूर के लिए नहीं, इस जानवर के लिए भी रहमत बनकर के आया है कि जो ऊंट अपने मालिक की शिकायत मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर के गया और सर पैगंबर की चौखट पे रख के शिकायत करता था। लोगों ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये क्या कहता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे जिब्राइल ने बताया कि ये अपने मालिक की शिकायत कर रहा था कि मेरा मालिक मुझे चारा थोड़ा देता है और काम ज्यादा लेता है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके मालिक को बुलाया और फरमाया कि इसको चारा ज्यादा डाला करो और काम थोड़ा लिया करो। तो फिर मुझे कहना चाहिए कि मेरा पैगंबर इस मजदूर जानवर के लिए भी रहमत बनकर के आया है। बेशक बेशक, बहुत उम्दा खिताब है। मेरे भाइयों, मेरे नबी की उस रहमत को देखो कि अरब के अंदर औरतों की क्या हालत थी और कैसो किसरा में हालत क्या थी। ये मेरे पैगंबर की सीरत का एक अनोखा वाकया है जिसे असाउस सीर में नकल किया गया है। मेरे पैगंबर के घर में एक औरत आती है, उसके पास 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं। एक बच्ची उसकी गोद में है और एक बच्ची को वो उंगली से पकड़ कर के साथ लाई है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर के अंदर मौजूद है। हजरत आयशा ने देखा कि उसके साथ 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं। एक बच्ची उसकी गोद में है और एक बच्ची नीचे है और उसके
चेहरे से अफलाक टपक रहा है। माशाअल्लाह हमारे बड़े प्रधान जी हैं, उन्होंने 11,000 रुपए से मदरसे की खिदमत की है। अल्लाह तबारक व तआला उनके हाथों को बेहद कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला वो कामयाबी से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि एक बच्ची उसकी गोद में है और एक बच्ची नीचे, तो उंगली से पकड़ करके एक को साथ लाई है और हजरत एक बच्ची नीचे है, एक बच्ची नीचे है और उसके चेहरे से अफलास टपक रहा है, भूख टपक रही है, परेशानी टपक रही है। सैयदा आयशा ने फरमाया कि बहन क्या हुआ? कहने लगी कि मेरा खाली मैदान जंग में शहीद हो चुका है, मेरे पास कमाने वाला कोई नहीं है, मेरे पास लाने वाला कोई नहीं है, इन बच्चियों को कहां से खिलाऊं? ये कहकर अम्मा आयशा ने फरमाया तो बहन क्या हुआ? कहने लगी 7 दिन हो चुके हैं, न इन बच्चियों ने कुछ खाया है, न मैंने कुछ खाया है, पानी पी करके हम गुजारा करते हैं। अम्मा आयशा ने जब ये बात सुनी तो रो करके अंदर चली गई और अंदर जाने के बाद एक तोशाखान में हाथ डाला, उस तोशाखान के अंदर खजूरें हुआ करती थी, तोशाखान में हाथ डाला, एक खजूर निकली, उसके बाद दूसरे तोशाखान में हाथ डाला, उसमें से भी एक खजूर निकली। अम्मा आयशा वो दोनों खजूरें लेकर के आई और आकर के कहा कि बहन ये खजूरें मेरे लिए है और एक खजूर के 2 टुकड़े करके इन दोनों बच्चों के हवाले कर दो। तो जानते हो कांधले के खजूर नौजवानों, उस औरत ने जब उन खजूरों को पकड़ा तो एक खजूर एक बेटी को दे दी और दूसरी खजूर दूसरी बेटी को दे दी और कोई खजूर नहीं खाई। लोगों, उन बच्चों ने उन खजूरों को ऐसे झपटा जैसा कि बड़े अरसे की भूखी है, तो दोनों की दोनों खजूरें वो दोनों बच्चियां खा गई। अम्मा आयशा ने देखा कि ये औरत अब भी भूखी है, इसने अब भी कुछ नहीं खाया है। अम्मा आयशा अंदर चली गई, अंदर जाने के बाद एक बोरी में हाथ डाला, उसमें से खजूर निकाली और लेकर के उस औरत के पास आई और आकर के कहा कि बहन ये खजूर तूने खानी है, इन बच्चों ने नहीं खानी है। अम्मा आयशा ने जब वो खजूर उस औरत को दी तो उस औरत ने कहने लगी कि अम्मा मेरा तो गुजारा हो जाएगा, मैं तो पानी पी कर के गुजारा कर लूंगी, मेरी जो ये बेटियां है ये भी भूखी है, परेशान है। उस औरत ने उस खजूर के 2 टुकड़े करके दोनों बेटियों को दे दिए और कहने लगी कि अम्मा मेरा तो गुजारा हो जाएगा, मैं तो पानी पीकर भी गुजारा कर दूंगी। तो उस औरत ने खुद भी पानी पिया और अपनी बच्चियों को पानी पिला करके चली गई। थोड़ी देर के बाद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। हजरत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वो तमाम का तमाम मांग लिया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने बयान कर दिया। हुजूर ने जब ये वाक़या सुना तो हुजूर की आंखों से आंसू निकल आए, रोने लगे और रो करके कहा आयशा जाओ उस औरत को तलाश करो और वो जहां भी मिले उनसे कहो कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर और आमना के लम्बे जिगर ने तुझे दुनिया के अंदर रह करके जन्नत की खुशखबरी दी है। वमा रसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो मुसलमानों, मेरा पैगंबर सारी कायनात के लिए रहमत बनकर के आया है। ये नबी की रहमत है, अगर नबी की रहमत ना होती तो ये अजमत ना होती, कायनात में कुछ भी ना होता। ये सब कुछ मेरा पैगंबर की रहमत की वजह से है।